नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या वाली झांकी पर बोले जयशंकर की। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण की बात करेंगे। केरल के मानसून ने दी दस्तक की। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक 208 लोगों से सवाल जवाब की। साथ ही जानेंगे सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने पर कोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा की। लिव इन पार्टनर के बॉडी पार्ट्स को आरोपी ने किया बॉयल की बात करेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी में सीएम के भाषण के बीच नारे की। जयशंकर के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कसे तंज की। साथ ही जानेंगे महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर कसे तंज की। और आखिर में बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोली स्मृति ईरानी की। इसके साथ और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। कनाडा में देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालने के मामले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार 8 जून को भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि यहां बड़ा मुद्दा कनाडा की जमीन का भारत विरोधी चीजों के लिए इस्तेमाल का है। उन्होंने कहा कि भारत विरोध के लिए कनाडा का इस्तेमाल होना ना हमारे रिश्तों के लिए ठीक है और ना ही उनके लिए ठीक है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस मुद्दे पर मैं ये कह सकता हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर किसी को शिकायत है तो हमको है, क्योंकि कनाडा खालिस्तान समर्थकों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। उनका बयान सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। The 13th, is there something that the government is likely to do? And in addition, there was this procession which was taken out in Brampton yesterday, where they were glorifying the assassination of late Prime Minister Indira Gandhi. So, is there anything that government? May I also request to limit to one question per person? Please. मैं सर ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ, मंत्री जी ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल यह है कि आपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड बताया, लेकिन राहुल गांधी हाल ही में ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, वो कह रहे हैं भारत में सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं नष्ट हो रही हैं, भारत में क्या क्या लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। तो इससे विदेश मंत्रालय को विदेशों में समझाने में चुनौती बढ़ गई है, या आपको लगता है राहुल गांधी को वहाँ कोई सीरियस नहीं लेता? थैंक यू। आपको गो अहेड Abhishek. Sir, this is Abhishek Kapoor from Republic TV. Since you will be taking some questions from the United States, Kurt Campbell, senior White House officer, official said India-US relationship is going to see escape velocity getting in between the two. And since you mentioned it, I'm just taking this, if you can take this question. You mentioned except for China, we have done well everywhere else. If you could elaborate. So, more questions or perhaps hand over 3? Yeah, 3, sir. We'll leave it at that. So, let me start with Canada. For some time now, there is this case of students who the Canadians say did not study in the college which they should have studied, and when they applied for a work permit, they got into difficulties. From the very start, we, meaning the foreign ministry here, as well as our High Commission and the consulates in Canada, have taken up their case. And our point is that, look, the students studied in good faith. If there were people who misled them, the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. The latest report that I got, in fact only this morning, was that I think yesterday the Canadian Prime Minister also kind of made a statement in the House of Commons there, and the Minister also tweeted something, and they have also been talking to our High Commission out there. I think the Canadians also accept that, it would be unfair. I mean, if a student has done no wrong, and I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard.
regarding this float issue used, let me actually answer it, because I think there's a bigger issue involved. And the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. जो आपका जो सवाल था वो राहुल गांधी वाला, देखिए उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्रेरण का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च गुरुवार 7 जून को ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से शाम 7:30 बजे मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक मिसाइल के उड़ान प्रशिक्षण के दौरान सभी उद्देश्यों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। बयान के मुताबिक ये मिसाइल के 3 सफल विकास प्रशिक्षणों के बाद यूजर्स की ओर से आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। 7 दिन की देरी से ही सही, लेकिन केरल में आखिरकार मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि भारत मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि गंभीर चक्रवात बिपरजॉय के कारण शुरुआत में इसके हल्के रहने की संभावना है। केरल में मानसून 1 जून में आने वाला था, लेकिन इस बार पूरे 7 दिन की देरी के बाद राज्य में बारिश का दौर शुरू हो गया है। IMD के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते अगले 48 घंटों के दौरान मध्य अरब सागर, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों और केरल के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मानसून की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में न जाने का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। आपको बता दें कि केरल में मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून थी, जिसके बाद अब 8 जून को मानसून ने राज्य में दस्तक दी है। IMD के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसमें तेजी आने के कारण चक्रवाती हवाएं मानसून के केरल तट की ओर आगमन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि पहले ही मौसम विभाग ने केरल में 8 जून को मानसून की संभावना जताई थी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस की SIT ने अपनी जांच तेज कर दी है। SIT अपनी जांच रिपोर्ट अगले सप्ताह तक कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। SIT के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में करीब 208 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच टीम ने ब्रजभूषण के दिल्ली आवास के साथ ही उनके गोंडा स्थित घर पर भी जाकर पूछताछ की है। SIT ने ब्रजभूषण के पूर्व सहकर्मियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के रिश्तेदारों के भी बयान दर्ज किए हैं, जिसमें उनके साथ ब्रजभूषण के बर्ताव के बारे में पूछा गया है। ब्रजभूषण अपने करीबियों के साथ किस तरह से पेश आते थे, ये सब भी पता किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के दिल्ली आवास की भी जांच की थी, क्योंकि एक शिकायतकर्ता महिला पहलवान ने इसी आवास पर अपने साथ छेड़खानी किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 2016 से 2017 के दौरान का CCTV फुटेज भी निकालने की कोशिश की है, लेकिन पुरानी फुटेज का बैकअप नहीं मिल पाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपने सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें तुरंत राहत मिली है। राघव चड्ढा ने सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने के फैसले को पटियाला हाउस कोर्ट में चुनौती दी है। राघव चड्ढा ने बंगले का आवंटन रद्द करने को लेकर बीजेपी पर हमला किया और सरकार की द्वेष भावना के तहत लिया गया फैसला करार दिया। पटियाला हाउस
कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर नोटिस पर रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक राघव चड्ढा को पंडारा रोड पर आवंटित बंगला नंबर AB5 के खाली करने का नोटिफिकेशन पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी अपने आदेश पर अगली सुनवाई तक कोई कार्यवाही न करे। मुंबई से सटे मीरा रोड में हुई दर्दनाक हत्या के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मीरा रोड के गीता आकाशदीप सोसाइटी की 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 704 में रहने वाले 56 साल के मनोज साने नाम के शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। मनोज साने ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या कर उसके शव को डिस्पोज करने के लिए सैकड़ों टुकड़े कर दिए। मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नर के जोन 1 DCP जयंत बजबले ने बताया कि यह हत्या 4 जून को सुबह की गई थी, जिसके बाद आरोपी मनोज ने सरस्वती के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद आरोपी ने उन टुकड़ों को कुकर में डालकर उबाल डाला, जिससे हड्डी और मांस अलग अलग हो जाएं और बदबू भी न आए। इसके बाद वो इन टुकड़ों को डिस्पोज कर दिया करता था। आज यहाँ गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चले। कल दिनांक 7 जून को नयानगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता आकाशदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वीं मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। बाकी को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नयानगर पुलिस स्टेशन में IPC सेक्शन 302(2)(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर PI श्री वनपुटी कर रहे हैं। दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस को गुरुवार 8 जून को उद्घाटन किया गया। इस कैंपस का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने साथ मिलकर किया। हालांकि इस उद्घाटन को लेकर काफी विवाद भी रहा। इस विवाद और हंगामे को ध्यान में रखते हुए पूरे कैंपस में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती भी की गई थी। इस दौरान जब गुरुवार को उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री और LG पहुंचे तो इस दौरान बीजेपी और आप के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच LG और मुख्यमंत्री ने इस कैंपस का उद्घाटन किया और पूरा कैंपस भी देखा। इसके बाद जब सभी के भाषण देने की बारी आई तो ऑडिटोरियम में भी बीजेपी और आप दोनों के पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी होती रही। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। एक बार बोल तो
इसको अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। एक मिनट, अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आड़े हाथों लिया है। भाजपा व जयशंकर पर कांग्रेस सांसद ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिना वोट पड़े भाजपा चुनावी नतीजा बताने में सक्षम है। हाँ, मैंने तो खुद गए थे। देखिए, सबसे पहली बात यह कि मुझे थोड़ा ताज्जुब लग रहा है कि इस मुद्दे पे सीबीआई क्या करेगी जाकर, क्योंकि ये सारे टेक्निकल मुद्दे हैं और रेल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं और रेल से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं उन्हीं को पता चलेगा कि असलियत क्या हुई थी। और आप जानते हैं कि हमारे सेफ्टी माने कमीशन ऑफ सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी की अलग हमारा डिपार्टमेंट भी है। ये हादसा होने के बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी देखते हैं, क्योंकि ये हादसा की असलियत पता करने के लिए कौन ऑपरेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये 4-5 जो डिपार्टमेंट रहते हैं जिनके ऊपर ये सारे सिस्टम को मतलब रेल को चलाने की जिम्मेदारी होते हैं, उनको सबसे पहले जानकारी होगा कि ये कैसे हुई। आपको ये बता दें कि जो डाटा लॉगर की बात हो रही है, ये डाटा लॉगर मतलब कोई अगर विमान में, हवाई जहाज में अगर कोई हादसा होते हैं तो तुरंत हम ब्लैक बॉक्स की पता लगाते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में छुपा रहते हैं ये हवाई जहाज की हादसे की या दुर्घटना की असली कारण क्या क्या होते हैं। उसी तरह मान लीजिए ये ब्लैक बॉक्स की और एक अलग इक्विवेलेंट होते हैं रेल में, ये डाटा लॉगर। तो इसमें ज़्यादातर जो रेलवे के ऑफिसर्स वो कहते हैं कि मतलब इंटरलॉकिंग की गड़बड़ी है, सिग्नल की गड़बड़ी है। मंत्री खुद कहते हैं कि लोकेशन बॉक्स में गड़बड़ी है। तो ये सरकार और सरकार की अधिकारियां ये खुद अपने अपने बयानबाजी करते हैं, जिसमें असलियत को हम खो रहे हैं कि असलियत क्या है इसको पता किसी को नहीं चलेगी। तो हम लोग अंधेरे में और कितने ढूंढते रहेंगे कि असलियत क्या है, इसका वजह क्या है, कारण क्या है, किस लिए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है ये सरकार जो रेल चलाते हैं, और खासकर जहां प्रधानमंत्री विजिट किए थे, हमारे रेल मंत्री भी विजिट किए, तो इतने बड़े बड़े ऑफिसर उस घटनास्थल की जायजा लेने के बाद भी अगर आज तक ये स्पष्टीकरण रेल कर नहीं पाते कि किस वजह से इस तरीके की भयावह हादसा हुई है, तो इसमें ये सरकार को और रेल दफ्तर ये दोनों को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। ये दोनों इसमें आम लोगों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि सारे आम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अब नए सिरे से रेल भी चालू हो गए, लेकिन हादसा के चलते इतने बड़े हादसा जो इतिहास में कभी कभी होते हैं, जहां 288 व्यक्तियों को मौत हो चुके हैं, फिर भी इस हादसा को लेकर ये सरकार और रेलवे अधिकारियों ने खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक होते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जांच हो और जो एक्सपर्ट रहते हैं वो एक्सपर्ट की जरिए जांच किया जाए, और सबसे अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें निगरानी हो और सुप्रीम कोर्ट तय करे, फैसला करे कि कौन सा रेलवे एक्सपर्ट को इसमें शामिल किया जाए और उससे तफ्तीश किया जाए, क्योंकि सीबीआई की तफ्तीश आप जानते हैं इसमें सरकार की भरोसा हो सकते, आम लोगों की नहीं है। देखिए, पहले आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की घर पे नीतीश कुमार जी को बुलाए गए थे, वो आए थे। एक दिन मैं भी थे जब लालन जी ऑल पार्टी मीटिंग में योगदान किए थे,
मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, आवास पे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आप चाहो आप भी बात कर सकते हैं। ये तो कांग्रेस की उदारता, कांग्रेस चाहते हैं देश में अगर बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ने के लिए इच्छुक है तो आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बुलाए थे तो नीतीश कुमार आए थे, अभी नीतीश कुमार बुला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल जी जाएंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बराबर एक ही नसीहत सबको दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ राजनीति करने की बजाय आज की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ संघर्ष करना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिनके लिए देश सर्वोपरि होते हैं, पार्टी नहीं। लेकिन बाकी पार्टियां क्या करेगी ये उनके ऊपर निर्भर करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तेवर स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहते हैं सारे देश जानते हैं, जो लोग योगदान करते हैं वो भी जानते हैं, सबको ये जानकारी है। लेकिन एक बैठक में क्या अचानक नतीजा निकलेंगे ये मुझे अभी कहने के लिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं। हमारे पार्टी की आला कमान जो इस पे निगरानी रखते हैं, समय आने पर जरूर आला कमान की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से ये बता दिया जाएगा। इसमें अलग से व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ कहना मैं वाजिब नहीं समझता। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मजहब पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। है उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबॉर्ट्री बन चुका है। हर चीज़ का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मजहब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो बिरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने NIA ने रहमतुल्लाह साहब को बुलाया, तो ये डायरेक्टली हमारे मजहब पे भी वार कर रहे हैं हमें। और जो मजहब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी ज़बान बोले, क्या खाएं, क्या पिए, हमारा मजहब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किए। इन्होंने 2019 में हमारे वकार पे, हमारी शनाख्त पे अटैक किया, हमें हर हिसाब से डिस्पोजेस किया, हमें खुदा न खास्ता बहुत हर तरीके से जलील किया। मगर अब ये हमारे मजहब के ऊपर, हमारे लिबास के ऊपर, हमारी बच्चियों के वो क्या पहने उस पे ये आ गए हैं। हमारे मजहबी रहनुमाओं की इज्जत उछाल रहे हैं। NIA क्यों बुलाए किसी को? क्या हक बनता है उनका? क्या रहमतुल्लाह साहब कोई खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल है जो उनको बुलाएंगे? या जो जेलों में है ये कह रहे हैं 2019 से कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे रहनुमा, मजहबी रहनुमा जेलों में क्यों हैं? अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्यों है वो जेलों में? तो ये मुझे लगता है ये चलेगा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ईरानी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि आज सरकार में महिलाओं को संरक्षण है। इस रिपोर्ट में विस्तार से सुनिए स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। देवी और सज्जनों, गत 9 वर्ष नव भारत के निर्माण को समर्पित, महिला कल्याण को और महिला के उत्थान को समर्पित सरकार की महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत किए गए कुछ प्रयासों को आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय
विशेषता गठित किया गया ताकि देश भर में आंगनवाड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। 2014 में प्रधान सेवक की भूमिका में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह दिशा निर्देश था कि पूरी सरकार में महिला के संरक्षण हेतु भी प्रयासरत सरकार के समन्वय की जिम्मेदारी इस मंत्रालय के अंतर्गत आनी चाहिए। इसलिए हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सुपोषित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 18 मंत्रालयों का एक संपूर्ण प्रयास पोषण अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। आज ये कहते हुए आनंद है कि जिस आंगनवाड़ी क्षेत्र के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो 1970 के दशक से चल रहा है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 4 दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी से समाधान देने के लिए प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हम हर बेनिफिशियरी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर नामक टेक्नोलॉजी की एक व्यवस्था देश के 13,90,000 आंगनवाड़ीज में स्थापित की, जिसके चलते 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी गर्भवती महिलाएं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, जिसमें से 92% आधार सीडेड हो चुके हैं, उनको आंगनबाड़ी व्यवस्था से रियल टाइम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया। कुछ लोगों का यह मानना था कि ग्रामीण अंचल में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हर महीने बच्चों का वजन होता है, लंबाई नापी जाती है, वो रियल टाइम डेटा भारत सरकार के सामने उपलब्ध कराया जाता है। एक आंकड़ा आपको बताना चाहती हूं, मार्च के महीने में 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में देश में 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों का डेटा आंगनवाड़ी की हमारी बहनों ने ट्रैकर के माध्यम से प्रदेश और देश की सरकार को प्रेषित किया। बेनिफिशियरी तक व्यवस्था पहुंची कि नहीं, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने हर महीने लाभार्थी को फोन से संपर्क करने की व्यवस्था बनाई, एसएमएस से संपर्क करने की व्यवस्था बनाई और 75 लाख से ज्यादा एंगेजमेंट्स गत 2 महीने में हो चुके हैं। ये विषय शायद ही कभी सुर्खियों में आए, इसलिए मैं विशेष आपको यह आग्रह करती हूं कि ये जानकारी
इसीलिए भी पहुंचाएं क्योंकि आंगनबाड़ी की व्यवस्था से और सरकार की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके अंतर्गत गर्भवती माताओं को बैंक के खाते में कैश ट्रांसफर की भी व्यवस्था महिला और बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हुई। दोबारा कहती हूं आग्रहपूर्वक कि ये आंकड़ा भी शायद ही कभी चर्चा में आता है, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि देश में 3,32,00,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से जुड़कर 5,000 रुपए का कैश बेनिफिट अपने बैंक के खाते में प्राप्त किया। अब तक 13,650 करोड़ रुपया लगभग महिलाओं के बैंक खाते में पहुंच चुका है। मैं आनंदित हूं ये कहते हुए कि बेटियों के संरक्षण और माता के संपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते हुए हाल ही के बजट में भारत सरकार ने अब यह तय किया है कि अगर दूसरा बच्चा लड़की होगी तो 6,000 रुपए सीधा ऐसी माता के बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आज आप में से कई यहां विशिष्ट पत्रकार विद्यमान हैं जो साक्षी रहे जब कांग्रेस की सरकार ने निर्भया फंड की घोषणा की थी साल 2013 में। यह कहना उचित होगा कि साल 2013 में घोषणा तक अपने आप को सीमित रखने वाली कांग्रेस सरकार ने एक भी महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया। आज 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार निर्भया फंड के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश की सरकारों के साथ और अन्य भारत सरकार के प्रकल्पों के साथ 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रेज किया। 6,712 करोड़ के फंड्स को रिसीव करवाया और वर्तमान में प्रदेश सरकारों को मात्र इसी फंड से 4,923 करोड़ रुपया भारत सरकार दे चुकी है। कई लोगों को यह जानकारी नहीं कि साल 2014 से पहले अगर महिला किसी मुसीबत में होती तो मेडिकल व्यवस्था, पुलिस का सहयोग, लीगल सहयोग, ऐसा कोई भारत सरकार का प्रकल्प नहीं था देश में जिससे महिला को संरक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि देश के हर जिले में महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर बने। 801 सेंटर भारत सरकार ने अप्रूव किए। वर्तमान में 733 सेंटर्स देश में फंक्शनल हैं। प्रदेशों से मांग आई कि जहां जहां जिस जिले की आबादी ज्यादा है या जहां पर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिला के खिलाफ वारदातें ज्यादा हैं, वहां पर वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब 300 और सेंटर्स खोलने का बजट भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। यह भी कहना उचित होगा कि भारत सरकार ने प्रदेश भर में, आप चाहे जिस भी प्रदेश के हों, वहां जो महिला हेल्पलाइन चलती है वो महिला हेल्पलाइन भारत सरकार के सौजन्य से चलाई जाती है। आज हमारे देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइंस ने
भारत सरकार के इस प्रयास के माध्यम से 1,26,00,000 कॉल्स को अटेंड किया, जिसमें से 64 लाख महिलाओं की मदद हुई। ये सब भारत सरकार, प्रदेश सरकारों के समन्वय से और भारत सरकार की निधि से संभव हुआ है। देश भर में जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम चलता है, वो निर्भया फंड के अंतर्गत भारत सरकार चलाती है। 112 ये नंबर निश्चित रूप से आपने सुना होगा। मोबाइल ऐप बेस्ड सिस्टम भी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन शायद ही कोई ये जानता है कि अब तक 29 करोड़ कॉल्स इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ने भारत में अटेंड की हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि देश में मांग उठी थी कि जो प्रमुख शहर हैं उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया जाए। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए इन 8 शहरों में फंड्स को उपलब्ध करा दिया गया है। महिला संगठनों द्वारा यह मांग उठी थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशली जो वायलेंस अफेक्टेड, हिंसा ग्रहित महिला का संरक्षण करने का जिनके पास दायित्व है, उनकी विशिष्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब तक भारत सरकार ने ऐसे 25,000 ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। संकल्प भारत सरकार का था कि हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बने। अब तक देश में 13,550 महिला हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराए गए हैं। देश में जो लोग क्राइम प्रिवेंशन के लिए समर्पित हैं, उनका ये निवेदन था कि सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराया जाए। अब तक 14,500 सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। डीएनए लेबोरेटरी चंडीगढ़ का उद्घाटन 2019 में हुआ। 30 राज्यों को फोरेंसिक साइंस लैब्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता समर्थन दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स महिला को न्याय समय अनुसार कानून की परिधि में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश में स्थापित की, जिसमें से 418 कोर्ट्स विशिष्ट रूप से पॉक्सो कोर्ट्स हैं। पिछले महीने तक का आंकड़ा है 1,60,000 से ज्यादा केसेस अब तक सिर्फ पॉस्को के इन कोर्ट्स में न्याय संगत समाधान तक पहुंचाए गए हैं। जिन लोगों को सजा होनी थी, उनको भी कानून के तहत सजा दिलवाई गई। आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की शायद ही बात होती है,
हमारे देश में कभी भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की व्यवस्था जिलावार नहीं थी। जिलावार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स अब 780 से ज्यादा ऑपरेशनल हैं। आज ये भी बताना उचित होगा, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम्स 983 रेलवे स्टेशंस के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से 340 से ज्यादा फंक्शनल है, कंप्लीटेड हैं। एक तरफ महिला संरक्षण, महिला पोषण, दूसरी ओर बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से यहां कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने शायद पार्लियामेंट में पॉक्सो के अमेंडमेंट की चर्चा को कवर किया है। आपको याद होगा, पॉक्सो के संदर्भ में मैंने विशेष आग्रह पार्लियामेंट में रखा था कि हम चाहते हैं कि हर वो संस्थान जहां पर बच्चे हैं, वहां संस्थान में किसको आप काम पर रखते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कराएं। आज भारत सरकार के पास ये एनसीआरबी के माध्यम से मुझे डेटा आया है, 5 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। आप जानते हैं 1930 साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। हमारा ये भी प्रयास था कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्टिंग अलग से की जाए ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में मदद हो। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि 12 लाख से ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंडर्स का डेटा आज हमारे पास है। पुनः ये मात्र मेरे एक मंत्रालय का ब्यौरा है। आप में से कई लोग इस बात से परिचित हैं कि मोदी सरकार ने महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 27 करोड़ महिलाओं का जनधन का अकाउंट खोला। 27 करोड़ 70 लाख मुद्रा लोन्स मात्र महिलाओं को दिए। 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव, ये भी महिला उत्थान की दृष्टि से सरकार का एक सराहनीय कदम रहा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 18 लाख खोले गए। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक वक्त था जब सरकारें कहती थी महिला का उत्थान करो। अब वक्त आया है जब हिंदुस्तान कहता है राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो महिला नित विकास जरूरी है। Does anybody want me to say this in English? I'll leave the floor open for questions. Well, madam, like I said, if you had been witness to my interventions on the POCSO amendment, you would know that we have said consistently our endeavor is to ensure that there is police verification done by every establishment that serves the cause of children, to ensure that we compile data on sexual offenders so that police verification can be facilitated. Today, unfortunately, we have a data of over 12 lakh sexual offenders in the country. That the National Cyber Crime Reporting Portal has had over 5 crore visitors. That itself shows that people want to use every technological tool the government provides to ensure that they are better informed.
especially if they want to dedicate themselves to the cause of safety of children. नीरज पांडे एबीपी। नीरज जी, मुझे लगता है कि एक सरकार की प्राथमिकता हर वर्ग के लिए सुनिश्चित इस बात से भी होती है कि वित्तीय आवंटन किसी वर्ग, किसी समुदाय अथवा किसी दरकार के लिए कितना किया जाता है। तो जो गांधी खानदान अपने आप को संरक्षक बताता है मुस्लिम समुदाय का, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी सरकार में महज 12,000 करोड़ रुपया का खर्चा दिखाया गया और गत 9 वर्षों में मोदी सरकार में 31,450 करोड़ का खर्चा किया गया। एक और छोटा उदाहरण, जो गांधी खानदान अपने आप को माइनॉरिटीज का संरक्षक कहता है, जब वो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हमारे देश में चलाते थे तो उनका आवंटन था मात्र 860 करोड़। मोदी सरकार में यह आवंटन बढ़ाकर 2,691 करोड़ किया गया। मुझे लगता है ये आंकड़े अपने आप में कांग्रेस की सच्चाई बताते हैं। देवेंद्र पारासर इंडिया टीवी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये कह चुकी है और आप में से कई मीडिया नेटवर्क्स इस बात को पहले से ही जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि कैसे कांग्रेस का नेतृत्व हमारे लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की गतिविधि का बढ़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। इतने असहाय क्यों है गांधी खानदान के लोग? यतीन्द्र शर्मा। 9 साल की उपलब्धियां आपने गिनाई, लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि 9 साल में देश पूरा बर्बाद हो चुका है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है विपक्ष की मारना पड़ेगा। 23 जून को वो सब इकट्ठे होकर पूरा विपक्ष मीटिंग कर रहा है। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अरुण CNN। Well, for a lady to converse on a topic called Mohabbat Ki Dukaan would be a tad bit unchivalrous. But let me say this. When you talk about Mohabbat, does that include killing of Sikhs? When you talk about Mohabbat, does that include kidnapping of women in Rajasthan? When you talk about Mohabbat, does that include denouncing the Hindu way of life? When you talk about Mohabbat, does it mean partnering with those who want to bring India to a standstill? When you talk about Mohabbat, does that Mohabbat compel you to go seek outside intervention against your own democracy? तो ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी पॉलिटिकल सियासत से है? पूछे हिंदी में, भाई साहब तो बोलेंगे, गुजराती में पूछ लेंगे, बंगाली में तो भी बोल देंगे। एक महिला के लिए इन शब्दों के ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, लेकिन बिना छिचोरापन दिखाए इतना कहना चाहती हूं। ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे,
चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए। ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी मोहब्बत है? मोहित भट्ट। See, it is incumbent upon the Congress party to attack the image of Narendra Modi, for they are seeking a way back to power. Modi sits from a position of service, and that is the contrast the Congress can never bridge. I would be surprised if they have one kind word to say about the Prime Minister. The mohabbat does not extend to him. आमोद राय, TV9। मैं क्योंकि ये विषय अंडर इन्वेस्टिगेशन है इतना ही कहना चाहूंगी, जिन्हें सत्य से परहेज नहीं उन्हें सीबीआई से परहेज नहीं होना चाहिए। संजय शर्मा, लोकमत। जी सर। एक सेकेंड, यहाँ पर जो सज्जन मोबाइल पर हैं अगर वो धीमे बोलेंगे तो पत्रकार का प्रश्न सुनाई देगा। जी। जी जी मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके अंतर्गत प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बच्चे न सिर्फ रेस्क्यू हों बल्कि रिहैबिलिटेट भी हों। इसमें उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमने न सिर्फ बच्चों के संरक्षण के लिए आर्थिक आवंटन बढ़ाया है, आपको कहना चाहूंगी अगर आप सिर्फ साल 2009 का आंकड़ा ले लें, तब की कांग्रेस सरकार ने 50 करोड़ ही देश भर के बच्चों के संरक्षण के लिए आवंटित किए थे। इस वर्ष का मात्र अगर आप आवंटन देखें तो 1123 करोड़ रुपया बच्चों के संरक्षण के लिए हम लोग प्रदेश सरकारों को व्यवस्था में देते हैं। ये भी कहना उचित होगा कि हमने भारत सरकार के सौजन्य से हर प्रदेश को बोला है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग क्रियान्वित करें। आज हमारे देश में 760 से ज्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कार्यरत हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 780 कार्यरत हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 774 कार्यरत हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि अब तक भारत की संवैधानिक व्यवस्था में बच्चे के संरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली किसी के पास भी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। अगर आपने जेजे एक्ट के संशोधन में थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की होगी तो आपको ध्यान में आया होगा कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस के समन्वय के साथ ये व्यवस्था अब दी गई है। तो जो गैप था संरक्षण का, जो किसके पास जिम्मेदारी है, उस गैप को हमने 2021 में भरा, उसको नोटिफाई भी कर दिया है। अब एनसीपीसीआर के सौजन्य से प्रदेश की इकाइयां और प्रदेश की सरकारों के माध्यम से जिला की इकाइयों को और भी सुदृढ़ करने का हमारा निरंतर प्रयास है।
ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज़। हाँ जी।